عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز، کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں اس وقت سادھو سنت جو ہے وہ ناراض نظر آ رہے ہیں مودی حکومت اور یوگی حکومت کے خلاف۔ تو وہیں پر انٹرنیٹ کی دنیا میں سب سے طویل جو بندش لگائی گئی تھی میانمار میں مسلمانوں کے خلاف، وہ اس وقت اٹھا لی گئی ہے۔ ٹویٹر کو اس وقت مودی حکومت کی جانب سے نوٹس بھیجے جانے کی خبریں آ رہی ہیں، تو وہیں پر ارنب گوسوامی اور اس کی بیوی کے خلاف ایک اور مجرمانہ معاملہ درج ہونے کی خبریں آ رہی ہیں، اور بین الاقوامی شخصیتوں کو بھی حکومت کی جانب سے تنبیہ کی جا رہی ہے کسان معاملوں کو لے کر کے۔ اور پی ایم مودی کے بھائی پرہلاد مودی لکھنؤ میں آخر کیوں دھرنے پر بیٹھے، اور کرناٹک میں نرسنگ کالج کے کتنے طلباء کو کورونا متاثر ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ہلچل مچی ہوئی ہے۔ تو وہیں پر بارڈر پر کشیدگی کے درمیان ایئر فورس کے چیف نے کیا کہا ہے اور کس طرح کا بیان دیا ہے، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے مصر میں سونے کی زبانوں والی ممیز دریافت ہوئی ہیں، وہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے۔ اب 2 ملین کا ہمارا ٹارگٹ ہے، جلدی پہنچنا ہے، اس کی ذمہ داری آپ پر بھی ہے، اور ادارے کی مضبوط تو آپ کرنا ہی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، آئیے سب سے پہلے ہم لوگ چلتے ہیں سادھو سنت کو غصہ کیوں آ رہا ہے۔ دراصل اتراکھنڈ حکومت کے سامنے ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، کیونکہ سادھو سنت اس کے خلاف تحریک چلانے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ معاملہ کچھ یوں ہے کہ کمبھ میلے کے دوران سادھو سنتوں اور مٹھ مندروں کو زمین ملنا اب تک ممکن نہیں ہو پایا ہے۔ کمبھ کے دوران ہریدوار پہنچنے والے سبھی سادھو سنتوں اور اکھاڑوں اور مٹھ مندروں کو میلہ انتظامیہ کے ذریعے ٹینٹوں، چھاؤنی اور پنڈالوں کے لیے زمین الاٹ کی جاتی ہے، لیکن ابھی تک اس کا انتظام نہیں ہو سکا۔ یہی وجہ ہے کہ سادھو سنت کافی ناراض ہیں اور جلد زمین الاٹ نہ کرے جانے کی صورت میں تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ تحریک بہت لمبی دیر تک اور دور تک جانے کی بات کہی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ حکومت کی گائیڈ لائن کے مطابق زمین کا الاٹمنٹ جنوری کے آخر تک ہو جانا تھا، لیکن فی الحال اسے آگے بڑھا دیا گیا ہے۔ ایسی بھی خبریں سامنے آ رہی ہے کہ اب سادھو سنتوں کے لیے اراضی الاٹمنٹ کا عمل انجام نہیں پائے گا۔ اس سلسلے میں ریاستی حکومت کو آخری فیصلہ لینا ہے۔ میلہ انتظامیہ نے ریاستی حکومت سے گزارش بھی کی کہ انہیں اراضی الاٹمنٹ کے لیے اجازت دی جائے، لیکن فی الحال ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے، جس کی وجہ سے سادھو سنتوں میں اس وقت بہت زیادہ اشتعال پایا جا رہا ہے، اور کچھ دن اور اگر اس کو جو ہے ڈھیل دی جائے تو پھر جو ہے مزید جو ہے مشکلات میں پھنسنے کا ہے۔ سادھو سنت تحریک چلانے کی بات کر رہے ہیں۔ بہرکیف ناظرین گرامی، میں ایک اور خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور میانمار میں روہنگیا مسلم اقلیت کے 2 علاقوں میں دنیا میں انٹرنیٹ کی طویل ترین بندش کا آج خاتمہ ہو گیا۔ میانمار کی شمالی ریاستوں راخائن اور چین کے بیشتر علاقوں میں گزشتہ 19 ماہ سے انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی تھی۔ یہاں کی باتوں کو باہر پہنچانے سے اور جو ظلم و ستم ہو رہی تھی فوج کی جانب سے، یہاں کی حکومت کی جانب سے، تاکہ باہر کی دنیا نہ دیکھ سکے ان کی یہ درندگی اور بربریت، اس وجہ سے 19 ماہ سے انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی تھی۔ بالآخر اس کی طویل ترین بندش کو آج خاتمہ ہو گیا ہے۔ میانمار میں کام کرنے والے ایک موبائل آپریٹر نے بدھ کو ان دونوں ریاستوں میں انٹرنیٹ کی بحالی کی اطلاع دی۔ راخائن اور چین میں جون 2019 میں آنگ سان سوچی کے زیر قیادت سول حکومت کے تحت محکمہ ٹیلی کام نے ایک ہنگامی حکم کے ذریعے انٹرنیٹ سروس معطل کر دی تھی، جس کی وجہ سے یہاں پر مسلمانوں کے خلاف ہونے والے ظلم و ستم کی خبریں بہت ہی کم اور یہاں کی مناظر سامنے آتے تھے۔ میانمار میں سوموار کو فوج نے آنگ سان سوچی کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا اور اس کی جگہ خود اقتدار سنبھال لیا تھا۔ اس کے بعد موبائل فون آپریٹر اور ٹیلی نار گروپ کا کہنا ہے کہ راخائن اور چین کے 8 ٹاؤنز میں انٹرنیٹ کی سروس بحال کر دی گئی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ وہ ایک عرصے سے انٹرنیٹ سروس کی بحالی کے لیے کوشاں تھا، اور آخر انہوں نے جو ہے فوج کے یہاں آنے کے بعد جو ہے یہ معاملہ حل ہو پایا ہے، اور یہاں جو ظلم و ستم ہوئے تھے شاید اس کی ویڈیوز وغیرہ کچھ نکل کر کے اس وقت سامنے آئیں۔ ایسے تبصرے اس وقت چل رہے ہیں۔ اس ظالم خاتون نے جو ہے
पूरी तरह से 2 मुस्लिम अक्सरियत वाले इन इलाक़ों में जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ डाले हैं। ये दुनिया को दिखाना है। बहरकैफ, आइए नाज़रीन गिरामी मोदी हुकूमत की बात करते हैं। मोदी हुकूमत ने ट्विटर को नोटिस जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वो किसान कत्लेआम से मुतालिक मवाद और अकाउंट को हटाए। इस नोटिस में हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि अगर हुक्म की तामील नहीं हुई तो सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दरअसल ट्विटर पर हैशटैग मोदी प्लानिंग फार्मर जिनोसाइड के साथ कुछ मवाद पोस्ट किए गए थे जिसे नफरत आमेज़ और बहुत गलत तरीके से अफवाह फैलाने वाला और इश्तियाल अंगेज़ बनाया गया था। हुकूमत ने इसके खिलाफ ट्विटर को कदम उठाने के लिए कहा था। दरअसल हैशटैग मोदी प्लानिंग फार्मर जिनोसाइड का यानी कि मोदी जो है वो किसानों का कत्लेआम करने की प्लानिंग कर रहे हैं, इस माने वाले हैशटैग के साथ उन तमाम चीज़ों को पेश करने की कोशिश की जा रही थी, शेयर हो रहा था, फॉरवर्ड हो रहा था। इसी बात को लेकर के मरकज़ी हुकूमत ने जो है पूरी तरह से नाराज़गी जताते हुए इन तमाम ट्वीट्स को हटाने की मांग की थी और नोटिस जारी किया था। ABP लाइव पर इस सिलसिले में एक तफसीली रिपोर्ट शाये हुई थी जिसमें हुकूमत के ज़रिए ट्विटर को भेजे गए नोटिस और उसमें दर्ज बातें बताई गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक नोटिस में कहा गया है कि मज़कूरा मवाद समाज में गलत रविश, इस्तेहसाल और कशीदगी पैदा करने के लिए तरगीबी मुहिम तस्वुर किया जाता है। ये मुहिम कत्लेआम को हौसला अफजाई करने वाली है और इजहार राय की आज़ादी नहीं है। ये कानून और निज़ाम के लिए ख़तरा पैदा कर सकता है। दिल्ली ने यौम जमहूरिया पर जो तशद्दुद देखा था उसको मुल्क दोबारा नहीं देख सकता, ये कहते हुए जो है ट्विटर को नोटिस जारी कर दिया गया है। देखना है कि जो है ट्विटर उस मवाद को हटाया है या नहीं है, या नोटिस को संजीदगी से लिया है या नहीं है। नाज़रीन गिरामी, एक मरतबा फिर अर्नब गोस्वामी और उसकी अहलिया पर इस वक्त जो है मुजरिमाना मामला दर्ज कर लिया गया है। मुंबई की डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस DCP अभिषेक तिरिमखे ने बुध के रोज़ पब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ और मालिक अर्नब गोस्वामी और उनकी बीवी समृता के खिलाफ सिटी सिविल इंडियन सेशन कोर्ट में एक मुजरिमाना शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में मुंबई DCP ने अदाकार सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में अर्नब के ज़रिए गलत हमले का इल्ज़ाम आयद किया। द हिंदू में शाये खबर में बताया गया है कि जोन 9 के DCP तिरिमखे ने महाराष्ट्र महकमा दाखिले के ज़रिए दी गई मंजूरी के मुताबिक ये शिकायत दाखिल की है। तिरिमखे खुद पर हुए हतक इज्जत के हमलों से अफसरदा है जबकि वो अपने ऑफिशियल कामों की जिम्मेदारी निभा रहे थे। तिरिमखे का कहना है कि हतक इज्जत के जुमले उनके ऑफिशियल छवि को नुकसान पहुंचाने के मकसद से किए गए। इस तरह गलत तरीके से कस्दन मुंबई पुलिस महकमे को बेइज्जत किया गया। शिकायत में भी कहा गया कि अर्नब गोस्वामी ने इस बारे में पूरी तरह झूठे, बदनीयती पर मबनी और नागवार बयान दिए हैं जो उनके चैनल रिपब्लिक भारत पर नश्र किए गए हैं और ये वीडियो 7 अगस्त 2020 को यूट्यूब पर भी नश्र किया गया था। तो नाज़रीन गिरामी, इस तरह से जो है एक मरतबा फिर यहाँ पे अर्नब गोस्वामी की और उसकी बीवी की मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जबकि अलग अलग मामलात में और TRP के मामले में लगातार उन पर केस इस वक्त मुकदमा चल रहा है। नाज़रीन गिरामी, उधर हिंदुस्तान ने किसान तहरीक के सिलसिले में मारूफ बैनुल अक़वामी शख्सियतों के तबसरे को गैर जिम्मेदाराना करार देते हुए उन्हें मशवरा दिया है कि ऐसी तहरीकों को हिंदुस्तान की जमहूरी सियासत के तनाजुर में देखा जाना चाहिए और कोई भी तबसरा करने से पहले हक़ाइक़ को समझना चाहिए। वज़ारत ख़ारिजा ने आज यहाँ एक बयान में कहा कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट ने बहस मुबाहसे के बाद ज़राअत के शोबे में बेहतरी लाने के लिए क़वानीन नाफिज किए हैं। इस्लाहात काश्तकारों के लिए मज़ीद इख्तियारात और मार्केट तक बराह रास्त रसाई को यकीनी बनाती हैं और माशी तौर पर मुनाफा बख्श और ज़राअत की राह भी हमवार करती हैं, लेकिन इसके ख़िलाफ़ इस तरह से जो है बयानबाजियाँ करना वो ज़ेबा नहीं देता। लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए नाज़रीन की इंटरनेशनल सतह पर रेहाना और बहुत सारे अहम तरीन सेलिब्रिटीज़ जो बिलखुसूस जो है फ़िल्मी दुनिया से ताल्लुक़ रखने वालों ने जो इंटरनेशनल सतह से जिनके हज़ारों बल्कि सैकड़ों मिलियंस जिनके जो है फॉलोअर्स हैं उन्होंने आवाज़ उठाई थी, उसके बाद से जो है लगातार यहाँ की हुकूमत उनको तनकीद के निशाने पर ले रही है और कह रही है कि ये अंदर का मामला है, बैरूनी जो है वो बैरूनी पर्सनालिटीज़ इस पर बात नहीं कर सकते कहते हुए दिफा करने की कोशिशें हो रही हैं। और ये बात आप लोग जानते हैं, कल भी हमने बात आप लोगों के सामने रखी। आइए नाज़रीन गिरामी आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने ये आ रही थी कि जिसमें बताया जा रहा था कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी बुध को दोपहर आमोसी एयरपोर्ट पर धरने पर बैठ गए थे। प्रहलाद मोदी का कहना था कि उनके कुछ साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जब तक उन्हें आज़ाद नहीं किया जाता वो धरने से नहीं उठेंगे। PM मोदी के भाई ने कहा कि अगर उनके साथियों को आज़ाद नहीं किया जाता तो वो भूख हड़ताल भी कर सकते हैं।
मीडिया ज़राए से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक प्रहलाद मोदी लखनऊ एयरपोर्ट अराइवल हॉल के आगे धरने पर बैठ। दिल्ली से आने वाली 2 बजे की परवाज़ से प्रहलाद मोदी लखनऊ पहुंचे थे। उनको सुल्तानपुर और जौनपुर में योग सोशल सोसाइटी की जानिब से एजाज़ पेश किया जाना था, लेकिन पुलिस ने एक दिन पहले ही सोसाइटी और उसके प्रोग्राम को फर्जी बताते हुए ऑर्गेनाइजर को हिरासत में ले लिया। इस कार्रवाई से प्रहलाद मोदी के एजाज़ में मुनक़िदा प्रोग्राम मनसूख हो गया और जैसे प्रोग्राम मनसूख हो गया तो उन्होंने जो है इसके खिलाफ धरना देने के लिए जो है एयरपोर्ट के पास बैठ गए और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ज़बरदस्ती उनको जो है इस तरह दबाव बनाया जा रहा है प्रोग्राम को और ऑर्गेनाइज़र को पूरी तरह से प्रोग्राम मनसूख करने के लिए, और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। उनको फौरी बिलाशर्त रिहा किया जाने वरना धरना जारी रखने की जो है बात कहते हुए, चूँकि नरेंद्र मोदी के भाई थे और प्रहलाद मोदी, तो जाहिर सी बात है कि ये खबर जो है सुर्खियों में आ गई। उनकी तस्वीरें भी बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी थी। ये मंज़र आप देख सकते हैं जो इस वक्त हम आपको तस्वीर के हवाले से यहाँ दिखा रहे हैं। बाक़ैफ नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में नर्सिंग कॉलेज के 49 तलबा को कोरोना हुआ है। जी हाँ, कोरोना मुतासिर पाए गए हैं। पूरे अस्पताल को सील करने की खबरें आ रही हैं। ये जो आ रही है, केरला से इम्तिहान देने कर्नाटक की उल्लाल के अब्बाका सर्कल के पास नर्सिंग कॉलेज में आने वाले 49 तलबा को कोरोना मुतासिर पाए गए। इस वाक़े के सामने आती उल्लाल नगर काउंसिल के अफसरान ने कॉलेज के साथ ही अस्पताल को भी सील कर दिया है। गौरतलब बात यह है कि वायरस के मामले में कर्नाटक पूरे मुल्क में दूसरे मकाम पर है। रियासत में अब तक 9,40,170 अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं, जिनमें से 9,22,004 अफराद को कोरोना को शिकस्त दे चुके हैं और जबकि 12,223 अफराद की मौत हो चुकी है और रियासत में फ़िलहाल 5,924 फ़ाल केसेस है। ऐसे में केरला से इम्तिहान देने आए तलबा को कोरोना वायरस और भी पूरे 49 तलबा को इस तरह मुतासिर पाए जाने की वजह से पूरे अस्पताल को सील किए जाने और एक हंगामा खेज़ी पैदा होने की खबरें सामने आई। नाज़रीन गिरामी, चीन से गुज़िश्ता माह से सरहद पर चल रही कशीदगी के दौरान एक बयान सामने आया है और वो बयान एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया ने दिया है। उन्होंने कहा कि राफेल की तैनाती से चीनी कैंप में खलबली मच गई है। हिंदुस्तानी फ़िज़ाई चीफ ने यह भी कहा कि मशरक़ी लद्दाख में हिंदुस्तानी फ़ौज के साथ हुए पुरतशद्दुद झड़प के बाद दोनों ममालिक में तनाज़ा इतना बढ़ गया कि चीन ने सरहद पर J-20 जंगी तैयारे तैनात कर दिया था, लेकिन जब हमने उस मैदान में राफेल की तैनाती की तो वो पीछे हटने को मजबूर हो गए। हिंदुस्तानी फ़िज़ाई चीफ RKS भदौरिया ने यह भी कहा कि सरहद पर कशीदगी कम करने के लिए फ़ौजी कमांड सतह की मीटिंग चल रही है। हिंदुस्तान हमेशा से सरहद पर अमन चाहता है, लेकिन चीन अपने फ़ौज को पीछे हटाने को तैयार नहीं है। सरहद पर जितनी फ़ोर्स की ज़रूरत है हमने तैनात कर दिया। ये कहते हुए एक मरतबा फिर चीन राफेल से डर गया है, ये बात कहते हुए जो है यहाँ के एयरफोर्स के चीफ ने सुर्खियाँ बनाई हैं। बहरकैफ अब देखना है कि चीन क्या वाकई में राफेल से डरता है और जिस तरह से वो लद्दाख के करीब में और दीगर जहाँ भी जो बॉर्डर्स है वहाँ पे जो बस्ती बसा रहे हैं उसके मुंह तोड़ क्या जवाब दी जाएगी यहाँ की हुकूमत की जानिब से, यहाँ के फ़ौज की जानिब से। इसके इंतज़ार में यहाँ के बाशिंदे हैं। बाक़ैफ नाज़रीन गिरामी, आखिरी ख़बर मैं आपको मिस्र की रख कर के फिर इजाज़त लेने की कोशिश करूँगा कि मिस्र की वज़ारत सयाहत और नौवारदात का कहना है कि मुल्क में सोने की ज़बानों वाली मम्मीज़ दरियाफ़्त कर ली गई है। मिस्री डोमिनिकन माहिर अर्जियात की एक टीम ने मगरबी सिकंदरिया के इलाके टापो सेरेस में एक माबद में पत्थरों के ताबूत में दफन 16 मम्मीज़ दरियाफ़्त की हैं। नाज़रीन, माहिरीन का मानना है कि इनकी ज़बानें सोने के पत्तों से बनी हुई हैं। उनके मुंह में सोने के पत्ते तदफीन के अमल के दौरान उनकी अपनी ज़बानें निकाल लेने के बाद रखे गए थे। माहिरीन के मुताबिक ऐसा इस उम्मीद पर किया गया था कि अफराद मरने के बाद आसिरेस से बात कर सकेंगे। मगर ये आसिरेस है क्या? आसिरेस को कदीम मिस्र में ज़ेर ज़मीन दुनिया का खुदा और मरने वालों का मुनसिफ माना जाता था और उसे एक अहम खुदा का दर्जा हासिल था। जिस गुंबद से मम्मीज़ दरियाफ्त हुई हैं उसके बारे में ख्याल है कि 2000 साल पुराना हो सकता है और कदीम यूनानी और रूमी अदवार में मारूफ रहा होगा। सिकंदरिया में नवारिदात पर अथॉरिटी का दर्जा रखने वाले खालिद अबुल हम्द का कहना है कि इस मकाम से खातून का जनाजे के भी शरीक होने के लिए पहनाए जाने वाला मास्क भी मिला है। उन्होंने मजीद ये कहा कि सुनहरे फूलों की चादर और मार्बल के टुकड़ों से बनाए मास्क यूनानी और रूमी अदवार से ताल्लुक़ रखता है। मिस्र की वजारत नवारिदात के मुताबिक सिक्कों पर मलिका क़लूपत्रा हज़म हफ्तुम की तस्वीर और नाम कुंदा था और ये इस मकाम से पहले दरियाफ्त हो चुके हैं।
बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, यूनान, मिस्र, इराक़ और इस तरह के इलाक़ों में जो पुराने तहज़ीब याफ्ता कहला जाते हैं, जिनकी तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है, वहाँ से जो इस तरह के चीज़ें दरियाफ़्त होती रहती हैं जो तारीख़ में रक़म हो जाती हैं। अभी एक नया मामला है मिस्र से जो आया है कि जो है सोने वाले ज़बान के ये मम्मीज़ हैं जो आप देख रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार।